Welcome back. We are doing Lost Spring, Chapter 2 of book Flamingo. Lost Spring, as the name suggests, Lost Spring means lost childhood. The writer has compared childhood as spring, as the spring is the most beautiful season. Similarly, the childhood is the most beautiful time of a person's life. So, this chapter is all about the plight of street children forced into labor early in the life and denied the opportunity of schooling. It also talks about the carelessness of society and the political class to the suffering of the poor. So, in the part 1, we have seen that Sahib has got a job in a tea stall and he is working there and getting 800 rupees and all the meals. But he doesn't seem to be very happy. His face has lost all the carefree looks of the early days. Perhaps the canister he is carrying is heavier than the plastic bag that he was carrying as a rag picker. Now, he is not happy, although he is earning money, but still not happy. Why? Because he is now no longer his own master. So, it tells that the person, someone, he does any work, if it is under burden, under pressure, then the person doesn't enjoy it. Similarly, Sahib is not happy with the work he is doing because he is no longer his own master. Now we are going to start the second part. This is also a story about a boy. Mukesh, now the narrator, Anish Jung, she meets another person, another boy, Mukesh. Let us start. I want to drive a car. This is the heading of the second part. Mukesh is another boy who is also a poor boy. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Now the narrator, when she meets Mukesh, he announces that he wants to be a motor mechanic. Do you know anything about cars? I asked. The narrator, she asks that, does he know anything about the cars? He was so determined that he says, I will learn to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Now, he very determinedly says, he's so determined that he said, I will learn to drive a car. A person who doesn't have even a meal, even 1 rupee in his hand, he is very optimistic. He says that he will learn to drive a car. Looking straight into narrator's eyes, and his dream, for narrator, his dream looms like a mirage. So loom होते हैं that spread होना, and mirage means that illusion, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा. तो अब नरेटर को उसका हिज ड्रीम, उसका सपना कैसा दिख रहा है? जैसे एक मृग तृष्णा, एक इल्यूजन होता है. जैसे मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मिराज कहते हैं. जैसे रेत होती है जब रेगिस्तान में, तो जब दूर से देखते हैं तो हिरन को या किसी को भी, ऐसा पर्सन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामने पानी है, क्योंकि वो जो रेत होती है वो चमकती है. लेकिन जब उसके क्लोज़र हम जब पहुंचते हैं नज़दीक, तो ऐसे दिखता है कि वो रेत ही थी जो दूर से चमकते हुए पानी नज़र आ रही थी. सो दिस इज़ कॉल्ड इल्यूजन, जिसे हम मिराज कहते हैं. सो सिमिलरली हेयर, उसका ड्रीम जो था वो एक मिराज की तरह स्प्रेड हो रहा है. कहाँ पर? सो जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स हैं, उसके अपने ही टाउन की डस्ट ऑफ स्ट्रीट. मीन्स द राइटर वांट टू से दैट उसका जो सपना है वो उसकी गलियों में ही एक मिराज की तरह स्प्रेड होकर वहीं पर बिखर जाता है. डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स में वो फिल हो जाता है. फेमस फॉर इट्स बैंगल, जहाँ पर
फिरोज़ाबाद उसका शहर है जो बैंगल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. Every other family in the Firozabad is engaged in making bangles. So every other family, Firozabad is the city जहाँ पर हर पर्सन उसकी जो लोकेलिटी में आसपास जो भी लोग हैं वो सब बैंगल मेकिंग के लिए ही फेमस है, और वहाँ पर मोस्टली फैमिलीज़ जो हैं इसी प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations. Working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. So this is the place जहाँ पर क्या किया जाता है, सबके सब लोग बैंगल्स बनाते हैं. सेंटर ये इंडिया के सेंटर में है, जहाँ पर फिरोज़ाबाद जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, और मोस्टली फैमिलीज़ वहाँ पर वर्क करती हैं फर्नेसेस, भट्टियों में, जहाँ पर ग्लास को मेल्ट किया जाता है, बैंगल्स बनाई जाती है. एंड ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि पूरे लैंड में, पूरे जगह पर जितनी भी वुमेन है सबकी जैसे बैंगल्स यहीं पर बनती हैं. मीन्स इतने लार्ज अमाउंट में वहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है. None of them know it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को ये पता भी नहीं है कि इतने हाई टेम्परेचर्स में इन छोटे छोटे बच्चों का काम करना इनलीगल है. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. डिंजी मीन्स अंधेरी, बिल्कुल जो सेल्स हैं, बिल्कुल काल कोठरी जिसे कहते हैं, बिल्कुल अंधेरी सेल्स में बिना एयर एंड लाइट के वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. एट दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, एंड दे पीपल आर एनफोर्स्ड, जब ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है. दे कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. So in dingy cells में ये बच्चे काम करते हैं. more than 20,000 children out of the hot furnaces. इतनी गर्म भट्टियों में वो काम करते हैं. where they slog their, slogging is to lose, जो हार्ड लेबर है, हार्ड लेबर करते हैं डे लाइट आवर्स में, पूरा दिन वो घंटों काम करते हैं. और ऐसी लाइट में जो बाहर लाइट होता है, अंदर तो अंधेरा ही होता है. ऑफन लूजिंग एंड दे लूज देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और इतना ज़्यादा वो अंधेरे में काम करते हैं कि वो बेचारे अपनी एडल्ट होने से पहले ही अपनी आइज़ की आईसाइट भी कई बार गंवा चुके होते हैं. मुकेश आइज़ बीम एज द वॉलंटियर to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Now his eyes are beaming as volunteer to take me. Mukesh is very happy to take me, means narrator says कि narrator को अपने घर ले जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है. उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी को अपने घर ले जा रहा है. और what is the matter, वो खुश क्यों है? because he proudly says his house is rebuilt, कि उसका घर जो है दोबारा बनाया गया. means he feels very proud that उसका ये नया घर में लेके जा रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंगिंग lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. So अब उसका घर कैसा है? That they walk down. अब नरेटर एंड मुकेश कहाँ गए? नीचे को गए, जहाँ पर स्टिंकिंग लेन, बदबूदार लेन्स थी, रास्ता था जो गार्बेज से पूरा चोक्ड था, बंद था, जहाँ पर गार्बेज पूरा ब्लॉक हो रखा है. पास्ट होम, पुराने घर हैं. दैट रिमेन होवल्स, जहाँ पर जो ऐसे घर हैं जहाँ पर उनके डर्टी, अब वहाँ उनके घरों में क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्टी होवल्स हैं, उनके कॉटेज हैं, हट्स हैं. एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें बिल्कुल गिरी पड़ी हैं, वॉल्स जो है टूटी पड़ी हैं. वॉबली डोर्स हैं, अनस्टेबल. वॉबली मीन्स वो दरवाजे भी जैसे तैसे टिकाए हुए हैं, मतलब स्टेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है. नो विंडोज़ भी नहीं है. क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमियल स्टेट, और एक ही घर में इंसान और जानवर भी रहते हैं, जैसे कि आदि मानव रहा करता था एंशियंट टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में, एंशियंट टाइम में आदि मानव रहा करता था. The similar way they people are living. He stopped at the door of the one such house
बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट। अब एक घर के दरवाजे पर रुका और उसने अपने पैर से उस डोर को, फुट को बहुत ज़ोर से क्या किया, दरवाजे को खोला। पुशेस इज ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक इन वन पार्ट ऑफ इट एंड थैश्ड विद डेड ग्रास। अब नाउ वी एंटर, नरेटर एंड नरेश महेश मुकेश, ही एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। अब उस हाफ बिल्ट शैक के अंदर घुसे हो, उस घर के अंदर जो उनका घर था, एंड वो कैसा था, रफ हट, जिसे हम कहेंगे शैक मीन्स अ रफ हट। सो इट वॉज इन अ पार्ट ऑफ इट थैच विद डेड ग्रास। अब घास फूस से उसकी छत बनाई गई है। इज़ अ फायरवुड स्टोव, और एक किनारे में एक स्टोव है जिसके ऊपर लार्ज वेसल पे एक सिजलिंग स्पिनिच लीव जो है बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, पकाने के लिए। एंड ग्राउंड में क्या है, ऑन द ग्राउंड द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेट्स हैं, एंड आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, एंड उनके ऊपर क्या है, चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. And young woman, she is cooking the meal for the whole family. Through eyes filled with smoke and she smiles. And now her eyes are filled with smoke but still she is smiling. Smoke क्योंकि चूल्हे में खाना बना रही है तो उसकी आंखों में धुआं बिल्कुल लग रहा है, और फिर भी she is smiling. She is the wife of मुकेश elder brother. मतलब वो मुकेश की भाभी है, elder brother की wife है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. No, she doesn't seem so much older, and she has begun command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, and she is bahu of daughter-in-law of the house, in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. अब जैसे ही घर के एल्डर आए तो जेंटली घर की टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गई। जैसे कि एक कस्टम होता है कि पुराने बुज़ुर्गों को देखकर बहुएं सर मुंह पर पल्ला कर लेती हैं, उनको देख के छुप जाती हैं, उनके सामने नहीं आती हैं। सो दिस इज़ द ओल्ड कस्टम, उनके घर में भी जो है उसको वो फॉलो कर रही हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। अब उनके फादर जो घर में आए, so he is an improvised bangle maker. Now as a custom, the daughter-in-law, she veiled their faces. The custom daughter-in-law, they veil their faces before the male elders. अब उन्होंने घूंघट रख लिया मुंह पर, veil means घूंघट, पल्लू रख लेना। अब वो improvised bangle maker, improvised means very poor, बैंगल मेकर के सामने, मतलब उनके जो अब घर के एल्डर आए तो ससुर के सामने उन्होंने अब पल्ला रख लिया है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अब वो पहले टेलर का काम करते थे, देन बैंगल मेकर, बट स्टिल ही फेल टू रेनोवेट हिज हाउस। रेनोवेट होता है रिकन्स्ट्रक्ट, घर को दोबारा से अच्छे से बनाना। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने घर को बना पाए और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वट ही नोज़, और सिर्फ वो यही सिखा पाया क्या, दैट वॉज आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। It is his karam, his destiny, says Mukesh, grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Now it is his karam, his destiny. मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है, who has watched her own husband go blind, जिसने अपने हस्बैंड